take you to the big political controversy that's unfolding in Rajasthan, where bulldozers are back. This time it's not in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, not in Gujarat or Delhi, but it is in Rajasthan. And now there is a huge political controversy over the demolition of a temple, homes and shops in Rajasthan. A 300-year-old Shiva temple was demolished. 86 shops and homes were also demolished with bulldozers, and this all happened in Rajasthan's Alwar district on Sunday. Now, this was all done in a bid to clear the way for the road. The BJP, however, has accused the Congress government of creating a communal divide. The Congress, on the other hand, has said that the orders were passed by the local municipal council in the area which is controlled by the BJP. There's also an FIR that's been filed against a local Congress MLA by the head priest of the temple. Let's listen in to both sides of the political story. ये उन्हीं का फैसला था, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। न तो सरकार से उन्होंने कोई डायरेक्शन मांगे, न सरकार ने उनको कोई डायरेक्शन दिए। मोटे तौर पर सरकार की तरफ से तो ये होता है कि जहां पर पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको हटाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। न तो डायरेक्टर लोकल बॉडी से पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी का के कंट्रोल का वो राजगढ़ नगर पालिका का बोर्ड है, जिसने सर्वसम्मति से ये फैसला किया और फैसला करने के बाद में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, पुराना आदेश था 2013 के अंदर गौरवपथ बनना था, गौरवपथ रुका, उसके बाद वापस नगर पालिका ने प्रस्ताव निसंदेह पारित किया, पर नगर पालिका के प्रस्ताव पर उन्होंने अतिक्रमण हटाने की बात की, पर अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम और अतिक्रमण को हटाने का काम, और ये काम सरकार का था, वहां के उपखंड अधिकारी का था, जो उन्होंने नहीं किया और बहरे में से सारे को तोड़ा गया। इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो सारी की सारी बात सामने आ जाएगी। All right, well, joining us on the broadcast, we have Mr. Balak Nath. He's the BJP Lok Sabha member of Parliament from Alwar. In fact, he is currently making his way from the demolition site. He just visited the demolition site. We also have Swarnim Chaturvedi, spokesperson of the Rajasthan Congress. Swarnim Chaturvedi, to you first, because the BJP is accusing the Congress of demolishing a temple to create communal tensions. How would you respond? Let me clarify first that all the activities, the demolition drive that was the demolition drive that was taking place, it was done by the Nagar Palika of Rajgarh. The Nagar Palika Rajgarh, it has a board of Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party is in majority. There is only one member of Congress in a board. So the 34 members of the Bharatiya Janata Party, they passed a resolution for widening of the roads and taking of the encroachments. They are responsible for this drive. Okay. And whatever happened, whatever encroachment has been demolished, it is being demolished by the Nagar Palika. That is BJP's Nagar Palika. Let's get Mr. Balak Nath to respond to that. Mr. Balak Nath, the BJP is accusing the Congress of trying to create communal tensions through this demolition that is taking place on Sunday. But the Congress party is saying that it is the municipal council that's ordered it and that is controlled by you. मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा। जी, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, लेकिन यही तो दिक्कत है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और अब से नहीं 35 वर्षों से है, और यहाँ की जो माननीय विधायक हैं और कांग्रेस सरकार है, ये परेशान है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हर बार राजगढ़ की जनता मत देती है और उनको बोर्ड बनाती है, और इस बार तो एक कैंडिडेट कांग्रेस का जीता है। इसी कारण, इसी का बदला लेने की भावना से इन लोगों ने ये कार्य किया। और गौरवपथ आज से नहीं 4 सालों से लंबित था, 4 सालों से वो प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक उसको इसी कारणवश बनाया नहीं जा रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मकान, दुकान उस क्षेत्र में, उस रास्ते में आ रहे थे। सरकार का दायित्व नहीं है क्या? सरकार की जिम्मेदारी नहीं? राजस्थान में सरकार की कांग्रेस सरकार है और एक कांग्रेस सरकार अपने दायित्व, कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है सर, लेकिन मुद्दा ये उठ रहा है कि जो लोकल बॉडी है जिसने ये अल्टीमेटली डेमोलिशन ऑर्डर करी है, वो तो भाजपा के कंट्रोल में है। मंदिर का किया क्या? उस डेमोलिशन ऑर्डर को आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी भेज दूंगा। उसने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन जहां मंदिर है, जहां कोई भी धर्म के पूजनीय स्थान क्यों ना हो, वहां पर पूरे विधि विधान से बातचीत करके लोगों से उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए था। पहले वहां के एसडीएम ने जिस प्रकार से किसको करना, सरकार को करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर इस कृतज्ञ को अंजाम दिया है, क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की, वहां पर बोर्ड कांग्रेस का नहीं है और सरकार ने उस बोर्ड की मीटिंग
मीटिंग का हवाला लेते हुए, ताकि ये उस बोर्ड की मीटिंग का एक माध्यम पकड़ते हुए सरकार ने मास्टर प्लान का हवाला लेते हुए इस कर्तव्य को करने का कार्य किया है। और पूरी की पूरी स्वर्णिम चतुर्वेदी, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? पूरी जिम्मेदारी वहाँ के एसडीएम की है। ईओ अधिकारी कौन है? इनका लगाया हुआ है। ईओ जो विधायक का जानकार रिश्तेदार है, विधायक का जानकार रिश्तेदार है। यहाँ पर कलेक्टर जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। बोर्ड की मीटिंग का से पहले कागज दिखा रहे हैं बालकनाथ जी, वो कह रहे हैं उनके पास कागजात है। को नहीं देखना चाहिए था, अधिकारियों को नहीं देखना चाहिए था। बालकनाथ जी, सांसद महोदय, मैं आपको कुछ कागज दिखाता हूँ, क्यों जनता के सामने इतना झूठ बोलते हैं? देखिए, गलती तो आप जांच करो ना, इसकी जांच करो, जो भी दोषी है उनको सजा दो। आप तो दोषी हमें कैसे कह रहे हैं बिना जांच के? आपने आप कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आरोपित आप हैं। अब मैं सच्चाई बताता हूं यहाँ पे। देखिए, ये एक कागज है, ये इनके भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर इनके नेता ने लिख के दिया है। वो ये लिख के देते हैं, पूरा पढ़ लीजिए। मिनट्स भी हमारे पास है, अरे मिनट्स भी दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे बालकनाथ जी, वो कुछ कागजात दिखा रहे हैं अभी, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके लोगों ने शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से हम्बर चलाकर, जिस प्रकार से ड्रिल मशीन चलाकर और जिस क्रूरता के साथ में, जिस अमानवीयता के साथ में आपके लोगों ने उस मंदिर का विध्वंस किया है, वो उसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों से। बालकनाथ जी, आप सांसद महोदय हैं और आपको मैं सच्चाई से अवगत कराता हूँ। 2 मिनट सुनिए। ये मैं बताना चाहता हूँ कि दिनांक, ये एक नगर पालिका राजगढ़ का आदेश है जो आपके नेताओं ने जारी किया। बालकनाथ जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, हमें सुनने तो दीजिए कि स्वर्णिम जी क्या कह रहे हैं। आपने अपनी बात रख दी है, हमने आपकी बात सुन ली है। झूठ बोले जा रहे हैं। आप वरिष्ठ सांसद हैं, 1 मिनट उनकी बात सुन तो लीजिए। 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए। आप दोनों कागजात दिखा रहे हैं हमें स्क्रीन पर, अनफॉर्चुनेटली कोई कागज। इफ्तार पार्टी के लिए निमंत्रण भेजती है कि इफ्तार पार्टी होगी। क्या हिंदू नहीं रहते राजस्थान के अंदर? उनका क्या नवरात्रि का त्योहार नहीं था? उस समय तो आपने फतवा जारी कर दिया कि आप पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए हैं। हम ये पर्टिकुलर जो कंट्रोवर्सी है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, उसकी बात कर रहे हैं। स्वर्णिम जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात तो सुनिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और सच्चाई मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली सच्चाई तो यह है कि वहां पे 2 मंदिर थे, एक निजी मंदिर और एक पुराना मंदिर। निजी मंदिर के मूर्तियों को खुद हटाया वहां के पुजारी ने, नोटिस मिलने के बाद। किसका नोटिस? नगर पालिका का नोटिस, सरकार का नहीं। नगर पालिका के नोटिस को मिलने के बाद उसने हटाया। और दूसरा मंदिर जो है उसका गर्भगृह है जहां पे मूर्तियां स्थापित होती हैं, वो अभी भी सुरक्षित है। और अब मैं पढ़ के बताता हूं जो बालकनाथ जी साहब सवाल पूछेगा। ये लेटर है दिनांक 13/4/2022। नहीं, आपका पॉइंट क्या है? मेरे पास समय बहुत कम है। स्वर्णिम जी, आपका पॉइंट क्या है? हाँ, ये लेटर, इसमें ये लिखते हैं इनकी नगर पालिका कि हम ये मार्गाधिकार को प्राप्त करने में बाधा बन रहे निर्माण संपत्तियों को दिनांक 17/4/2022 को हटाए जाने की बालकनाथ जी, वो कह रहे हैं कि उनके पास पूरा नोटिस की कॉपी है, वो पढ़ रहे हैं उसमें से। नहीं, नोटिस नहीं, ये ऑर्डर है। ऑर्डर की कॉपी है, सॉरी, ऑर्डर की कॉपी है। बिल्कुल, ये ऑर्डर जारी किया नगर पालिका ने, नगर पालिका ने जारी किया और नगर पालिका ने कह रही है कि हम इसको तोड़ने 7 बजे जा रहे हैं। Well, clearly, like I said, this has become a huge political controversy in Rajasthan. I'm afraid I'm completely out of time. Mr. Balaknath and Swarnim, thank you both very much for joining us on NDTV. We have to take a short break here. We'll be back with a lot more on the other side.